नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने Hello. That's also okay. Otherwise, it is in general P. Nagaraj. It's a South Indian style. The surname will be the first. (3:30) the talk should be over, and this topic I thought I would reserve only for the research students, PhD and MPhil students. And today I see that there is such a big number. Maybe even BA students are attending this. I don't know if I'll be. I'm sorry if I'll not be able to communicate to the BA students well. Because it's a little advanced philosophical issue. Most of the MA students might be able to catch up with it, and research students and faculty members, my faculty colleagues, they'll definitely be able to follow. But before I get into that topic, today I have reserved some topics which came up during my discussions with the students outside this class when I was walking to my hostel, guest house. While walking, there were many questions. One important, very important question that came up was, we are talking of revival of Sanskrit so much. Why are we not talking of revival of Prakrit? Prakrit bhi acha hi hai. And another question, because of my telling you all that Sanskrit and Prakrit are not two different languages, it is the same language. Prakrits are dialects of Sanskrit. Sanskrit is the standardized form, Shishta form of the Prakrits. This I wanted to impress upon you, and that has an implication that when people say Sanskrit was denied, there is no truth in it, because a Prakrit speaker understands Sanskrit and Sanskrit speaker understands Prakrit. That you have seen in all the plays. A Shishta character speaks in Sanskrit, and the Ashishta Prakriti, he speaks in Prakrit, and both of them understand each other. When they are able to understand each other, why would anyone ask for the knowledge of the Shishta language, the Sanskrit language? So it was part of that argument that there was absolutely no question of denial of Sanskrit to anyone at a point of time. Probably later, when the Prakrits turned into the older forms of the modern North Indian languages, for example, Ardhamagadi turned into older Bengali, Maharashtri turned into older Marathi. At that stage, probably Sanskrit was not understandable to the people. But even then, why would anyone ask, I would learn Sanskrit, when it is not required for him? When it is not asked for, why would it be denied? That was the argument. In that case, we were, as part of that argument, we were talking about Sanskrit and Prakrit being the same language. At that point, students asked me why Prakrit is not being revived. And
At that point, I narrated a story to them that I am narrating it to you now. There is one Patrick McCartney, I was mentioning, an Australian researcher now working in Kyoto, Japan. This man, I told you that he's always falls after this Vedic. Whenever you call something Vedic, he wants to say it's not Vedic, you are unnecessarily claiming it to be Vedic. And I argued with him, and as part of that, he told me that it is all because you are capturing business. $7 trillion wellness business में $300 million का तुम्हारा हो गया, मैं सह नहीं सक रहा हूँ, इसलिए ये सब झगड़ा हो रहा है. The same person, he has another fancy. What he does is, he went to a village which was created by Sanskrita Bharati people in Madhya Pradesh, where they created an entire village of Sanskrit speakers. They are attempting to do that at different places. In Karnataka also they have attempted. And in this village of Madhya Pradesh, this man goes, this Patrick McCartney goes and records the speech of all the people there and uploads it and then makes fun of it. He went on doing that. Wherever opportunity comes, whenever opportunity comes, he uploads it and makes fun of it, laughs at it, परिहास करता है, हंसता है. देखो, इनका संस्कृत में सब गलतियां हैं, एक भी शब्द अच्छा नहीं है, अपशब्द बोल रहे हैं. यही है संस्कृत भारती का काम. संस्कृत को रिवाइवल करने में ऐसा ही होता है. तो once when he posted, I immediately retorted saying that, see, it is two birds at one shot. What you have heard there is Prakrit. What is being revived there is Prakrit. जो तुम अपशब्द बोल रहे हो ना, उसे पहले के दिनों में बोल रहे थे अपभ्रंश. Villagers learn Sanskrit. If you revive Sanskrit among villagers, it happens only that way. They speak it the village way, and that is what is called as Prakrit. So, for those who have asked me why are we not reviving Prakrit, my answer is there is no need of separately reviving. Revive Sanskrit among all the people. When it is revived among the rural people, because they cannot pronounce it exactly the way the Sanskrit speakers, the Shishtas, educated, the elitists speak, Prakrit automatically gets revived. That's what has happened there. I retorted. Immediately, this fellow surrendered. He said, yeah, this is what I also meant. Yeah, I actually wanted to say that indirectly Prakrit was getting revived. And immediately there were many other professors, Professor Madhav Deshpande and others, they started commenting below, you are exactly correct, we agree. What is getting revived in the form of that rural pronunciation of Sanskrit by Sanskrita Bharati is Prakrit only. That's what happened. Even in the ancient times, what were called as Prakrits were Shishtetara Prayukta Sanskrita Bhasha. That's what happens even now, okay? And some of you were asking me, how do I learn this Prakrit? And I was telling that just read the Sanskrita Chaya. If you are reading any play, if there is Prakrit, actually just now I checked before coming here, that is why I was late. I was sitting in front of the internet, I was checking for the copies of Pratima Natakam. And the copy I had earlier had Prakrit and Sanskrita Chaya below that. That copy I could not locate today, in my hurry probably. If you get hold of a copy, otherwise, now that I have email IDs of all of you, I will definitely post it to you. Get hold of any copy, even in your library you can have, maybe Abhijnana Shakuntalam or any other play. You just look at the Prakrita part of it. The copies that I located today were all giving only the Sanskrita Chaya without Prakrita. Most of the people are unnecessarily doing that. I don't know why. That's a very bad practice. They are giving only the Sanskrita Chaya of the original Prakrit. But the actual correct method of printing is you have to give the Prakrita sentences, then in the brackets you could give the Sanskrita Chaya. But they are directly giving the Sanskrita Chaya, that's why probably you are not able to locate it. But if you read the Prakrit lines there and read the Sanskrita Chaya, I will definitely assure you, you will be able to see very close similarity between the two, and you do it for one play, at least one of the ankas,
If you do that, you will get confidence that there is nothing very difficult about following Prakrit. Just do it for an Anka. Some conversations. And I was told by one of you that you are also enacting plays, Sanskrit plays. This time you do the Prakrit. Okay? You learn the Prakrit portion of that also and use that Prakrit. And before watching that, if every one of you have followed the Sanskrita Chaya of the Prakrita lines, then because there is a practice of the same play, don't practice for the other play. For example, if you are doing Pratignya Yogandharayanam of Swapna Vasavadattam or Pratima Natakam, any of the Bhasas plays, you just, before going to the play, before going to watch the play, you follow the same lines which are going to be enacted there, Prakrit lines, Sanskrita Chaya, then your actors on the stage have to enact with the Prakrit lines only. Then what happens, because you have already practiced it, you have already studied it, you will be able to follow the Prakrit there. Okay, do it 3 times, 4 times, gradually you will get accustomed to the Prakrit part of it, and then you will get a confidence that it's not very hard to follow Prakrit also. Then do it for many plays, more plays, then actually Prakrit becomes very easy for you. That's what I wanted to do. Today I wanted to bring that copy and show it on the screen and make you follow and make you feel that, oh, इतना आसान है, मैं भी follow कर सकता हूँ. संस्कृत छाया दिया गया है, ज़्यादा फर्क भी नहीं है, but I could not locate it. It will be very easy. Actually, instead of Arya, it will be Ayya, something like that. Just a small difference. Okay. And you will be able to follow. So, probably in the next year's MA course they would include Prakrit also and teach you some amount of Prakrit while teaching the plays also. Then students will get accustomed to Prakrit. Then they will begin to understand that they are not 2 different languages. The 2 speakers are able to understand each other. So much for this Prakrit issue. This should spread, the words should spread from all of you that there were no 2 different languages called Sanskrit and Prakrit, there was only one language, okay, and people were speaking it differently. Shishtetaras were speaking it as Prakrit, and that is why Sanskrit was not denied to anyone. This so-called denial is a made-up story for breaking India, just to divide Hindus into 2 different groups, saying you were denied that, you were denied this. They created this story. Otherwise, Sanskrit was never denied to anyone. Okay, that so much for it. Now let us come back to this topic. Do we need to be skeptic? Skeptic को अगर हम गलती से पढ़ लिए तो वो सेप्टिक भी बन जाता है ना? वो सेप्टिक तो नहीं है. इधर कुछ भी सेप्टिक नहीं हो रहा है. सेप्टिक का क्या मतलब है? हाँ, ये जब इन्फेक्शन हो जाता है, जो कोई इंजरी है, घायल होता है, वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको सेप्टिक हो रहा है बोलते हैं. अंदर भी सेप्टिक हो सकते हैं, सेप्टिक कंडीशंस, इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है अंदर, इसको सेप्टिक बोलते हैं. ये वह नहीं है. यह क्या है? स्केप्टिक. बोलो, स्केप्टिक. ओके, स्केप्टिक का मतलब है डाउट करना, किसी और को डाउट करना, संदेह रखना और दूसरे आदमी पर संदेह रखना. अरे वाह, I found cosmology. Yesterday I was talking about cosmology already. हाँ, excellent, very good. देखिए कॉस्मोलॉजी आ गया. कल हम एस्ट्रोफिजिक्स कॉस्मोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे. कॉस्मोलॉजी लाइब्रेरी से मांग कर, अरे इसलिए फर्स्ट लाइन में बैठा है. इसलिए फर्स्ट लाइन में बैठकर मुझे बता रहा था, है देखो कॉस्मोलॉजी अच्छा है. ठीक है, अच्छा है. प्रतिमा नाटक देखेंगे. नहीं तो इधर देखिए, सीता
कोपि भर्ता राज्ये भविष्यति। हाँ इधर हाँ इधर लिखा है। हाँ कोई भी भट्टा। अगर आप चाहते हैं तो डिस्प्ले कर सकते हैं। हाँ हाँ बताइए, हम बताएंगे लोगों को। थोड़ा सा टाइम चला तो भी लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाना है। प्राकृत डिफिकल्ट नहीं है। आपके फैकल्टी सब प्राकृत जानते हैं, आप जानते हैं? उनको पता है बोल के आपको पता नहीं है, इसलिए आप पूछते नहीं है। हाँ सब फैकल्टी आपके जो है वे प्राकृत जानते हैं, इसलिए कि वे इतने प्लेस पढ़ चुके हैं, नाटक पढ़ चुके हैं, तो प्राकृत पढ़ते ही हैं ना। उसमें प्राकृत का संस्कृत शायद दिया जाता है, पढ़ चुके हैं। वो सिलेबस में नहीं है इसलिए पढ़ाए नहीं है शायद। हाँ जाकर पूछिए उनसे, सर मैं प्राकृत पढ़ना चाहता हूँ, तो पढ़ा देंगे। नहीं संस्कृत जब स्टार्ट करते हैं पहले क्लास में प्राकृत भी स्टार्ट कर देना चाहिए, उसी जगह उसी मोमेंट पर प्राकृत भी, है ना। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। नहीं वो तो ठीक है। हाँ इधर देखिए, ये कर्सर दिख रहा है क्या? हाँ देखिए, प्रतिहारी आर्य कैह कांचुकीयानाम सन्निहितः। देखिए नीचे क्या है, आर्य के जगह में अय्य, समझते हो ना क्या है? हाँ जूम करो। नहीं जूम नहीं, वो पेज चला गया। अच्छा वो archive.org का है क्या? कोई बात नहीं, एक दो देख के हम टॉपिक में चले जाते हैं। यद्येवं शोभनं कृतं, यद्येवं शोभनं कृतं, हाँ यद्येवं को स्प्लिट करके यदि एवं, यदि को जयी कर दिए हैं, है ना। यदि जयी बनता है तो आसान है समझने में। यदि यात्रा जात्रा बनता है, यवन जवन बनता है, यवनाश्व जवनाश्व बनता है, या जा बनता है, ये तो आपको पता ही है। यदि में वो दी जो है वो ई बन गया है, यदि जई बन गया है, बहुत आसान है। और एवं को यवम बना दिए हैं, एवं को एवं बनाते हैं। ऐसा भी प्रोनाउंस कर सकते हैं ना, एवं है, तुमको पसंद है कि एवं नहीं बोलना चाहते, एवं बोलते हैं, बोलो ना, एवं को एवं बोलो, ऐसे ही है। और शोभनम, शोभनम को क्या बोल रहा है? सोहणम, सोहणम। ये ना तो पंजाबी में मिलता है ना सोनिया, ये सोहणम, शोभनम, तो वो ना क्या हो गया? अणा हो गया है, और भा को खा बना दिए। शोभनम में वो जो शो है, शो का शा मुश्किल है, छोड़ दो, सो बना देंगे, बना दिए। भा मुश्किल है, हा बोलो, ठीक है। सोहणम हो गया, शोभनम शोहणम हो गया। कृतम किदम हो गया, कृतम। ये कृतम, ऋषि को हम क्या बोलते हैं? ऋषि बोलते हैं ना, ऋषि, वो री है। कृतम में जो कृतम है उसको कृतम प्रोनाउंसिएशन हो गया। वो कृतम को रा निकाल दिए, की कर दिए, ता को दा कर दिए, किदम हो गया, कृतम किदम हो गया। थोड़ा उसके बारे में सोचे तो ऐसा इसको प्रोनाउंसिएशन मुश्किल हो रहा है। ये भर्तृहरि बोलता है अम्बाम्बेति यथा बालः, राइट? अम्बाम्बा
अम्मा बोलने के लिए, माँ बोलने के लिए अम्बा अम्बा बोलते हैं ना, इसी तरह वो कृतम बोलने के लिए क्या बोल रहा है, किदम किदम बोल रहा है. जयी एवं सोहनम किदम. Actually, originally in the play, Bhasa has this only. Jayi evam sohanam kidam. This is yadyevam shobhanam kritam is the chaya. That is what they call. That is Sanskrita chaya. And what the editor did is, he is giving chaya in the beginning and then he is adding the original Prakrit later. Actually, the ideal way is to put the Prakrit, original Prakrit in the beginning, give the chaya in the brackets, in the parenthesis. Okay. Anyway, in any case, you are able to follow this. How many of you are not able to follow the chaya and the relation between Sanskrit? How many of you are able to follow? How many of you are able to follow? Follow कर सकते हो ना? हाँ, करना शुरू कर दो. आज से, आज ही शाम में मैं इधर से चले जाने के बाद लाइब्रेरी में जाना, एक नाटक को पकड़ लेना, प्राकृत 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 पढ़ते जाना, संस्कृत छाया को देखना, शाम तक आकर प्राकृत में बोलने लगेंगे. एक दूसरे से संस्कृत को छोड़कर प्राकृत में बोलने लगेंगे. अय्य बोलने लगेंगे इंस्टेड ऑफ आर्य. अय्य, गुरुजी के पास जाते हैं, अय्य बोलते हैं, है ना. करना शुरू कर दो, ऐसे ही होगा. होगा ना? करेंगे? हिम्मत आ रहा है? हाँ, स्टार्ट कर दो. स्टार्ट करके प्राकृत पढ़ना शुरू कर दो और बाद में प्राकृत इतना आसान हो जाएगा. बाद में ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च करना है तो थोड़ा कठिनाई होगा. अर्धमागधी क्या होता है, मागधी क्या होता है, शौरसेनी क्या होता है, पैशाची क्या होता है, महाराष्ट्री क्या होता है, पाली क्या होता है, उसके में भी बीच में थोड़ा फ़र्क होता है. क्या फ़र्क है ये सब समझ सकते हैं बाद में. हिंदी समझने के बाद बंगाली समझना तो इतना कठिनाई नहीं होता, उसमें थोड़ा थोड़ा हो सकता है, ज़्यादा नहीं, है ना. मैं अगर समझ सकता हूँ कि भोर भार ही है, क्या मुश्किल है. कल हर कोई मुझे बोल रहा था कि भोर आ जाता है. मैं सोचा कि भोर क्या होता है, बाद में सोचा भार, हो भारी है, भार को भोर बोल रहे हैं. मैं जब सुनता हूँ कि रसगुल्ला तो मैं समझ जाता हूँ कि है ये तो रसगुल्ला ही है, मेरा रसगुल्ला है, मैं जानता हूँ रसगुल्ला को, ये रसगुल्ला बोल रहे हैं. संदेश सुनता हूँ, संदेश बोलते हैं तो मैं समझ लेता हूँ कि संदेश ही है, संदेश बोलते हैं. रविंद्र संगीत बोलते हैं मैं समझ जाता हूँ कि रविंद्र संगीत है, रविंद्र संगीत ही है, उसको रविंद्र संगीत बोलता है. इतना ही है. मैं सुनते जाता हूँ, एक हफ्ता इधर रहकर सुनते जाता हूं तो बंगाली में बोलना भी लगता हूं, है ना. क्या है उसमें थोड़ा, मैं घर जाता हूं बोलने के लिए मैं घोर जो तो हूं बोल दिया बंगाली हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना. थोड़ा सीख लेना पड़ता है, थोड़ा सीख लेना पड़ता है. मगर एक नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज सीखने से दूसरे नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहते हैं. इसी तरह शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, इन सब में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा फर्क वो समझ सकते हैं. एक पाली समझने के बाद, एक महाराष्ट्री समझने के बाद अर्धमागधी, मागधी समझना बहुत आसान हो जाएगा. स्टार्ट करो अभी से तो तुम समझ जाओगे. अमेरिका में तो एक प्राकृत का डिपार्टमेंट होता है, शौरसेनी के लिए अलग होता है, मागधी के अलग होता है, अर्धमागधी के लिए अलग होता है. इसलिए मिलना है, ज़्यादा लोगों को सैलरीज मिलना है तो ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होना चाहिए. एक प्राकृत का प्रोफेसर होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसको संस्कृत पता है, संस्कृत को प्राकृत बनाकर पढ़ा देता है बस. मगर उसको पैसे मिलना है ना, उसको भी सैलरी मिलना है. ये प्राकृत डिपार्टमेंट बना जाएगा. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी ऐसा है. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्राकृत एक अलग डिपार्टमेंट है. वे बोलते हैं कि जैनिज्म के लिए प्राकृत अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है. वो प्राकृत प्रोफेसर जो है उसको भी संस्कृत पता है, संस्कृत का जो प्रोफेसर है उसको प्राकृत पता है. इन दोनों का एक ही डिपार्टमेंट बनाए तो सैलरी नहीं मिलता है. इसलिए प्राकृत डिपार्टमेंट अलग रहना चाहिए, संस्कृत डिपार्टमेंट अलग रहना चाहिए, ऐसा बना दिए हैं बस. ये संस्कृत और प्राकृत अलग अलग भाषाएं नहीं है. प्राकृत जो कितने भी प्राकृत हम बोलते हैं वे भी अलग अलग नहीं है, थोड़ा सा फर्क होता है. आप पढ़ना शुरू करो,
समझ जाओगे. ओके ओके, उतना तो our mother brought us our laptop so he helped us, so that's why we were able to see the Prakrit line and Sanskrit line the way I wanted to show you, we were able to see. So let us get back to our topic, skeptic. ये मैं बोल रहा था कि दूसरे आदमी पर शक करना, doubting the other person is a skeptic, but it's not as simple as that. अगर तुम तुम्हारी पत्नी के बारे में शक करते हो, करते हैं ना लोग, वह स्केप्टिक नहीं है, उसको स्केप्टिक नहीं बोलते. वह शक करना दूसरी तरह का शक है. कैरेक्टर के बारे में शक करते हैं लोग, हाँ, दूसरे के साथ घूम रही है ऐसा, हाँ, वो तो स्केप्टिक नहीं है. ये स्केप्टिक अलग है, ये शक करना अलग शक करना है. और दूसरे आदमी पर शक करना और एक तरह का भी होता है, वह टेररिस्ट है, आतंकवादी है, मुझे मार देगा, नहीं तो सब लोगों को मार देगा, बम उड़ा देगा, ऐसा भी हो सकता है. ये शक करना अलग है. यहाँ शक करने का मतलब है वह जो बोल रहा है वह सच नहीं है, इस तरह शक करने को स्केप्टिक बोलते हैं. वह जो बोल रहा है उसका वाक्य सत्य नहीं है, इस तरह शक करना, इसको स्केप्टिक बोलते हैं. वह भी दूसरे आदमी पर ही नहीं, हम जो पढ़ते हैं ग्रंथ में उस पर शक करना भी शक करना ही है, स्केप्टिक है, वह भी स्केप्टिक है. मैं सुबह बोल रहा था कि मेरे गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि अष्टाध्यायी के पीछे सैद्धांतिक स्वरूप कुछ भी नहीं है, हो भी नहीं सकता. जॉर्ज कार्डोना भी पाणिनीय सर्वे ऑफ रिसर्च में बोल दिए थे कि इसके पीछे कोई थियोरेटिकल फाउंडेशन नहीं है, यूनिवर्सल ग्रामर नहीं है, ऐसा बोलते थे. मैं पढ़ चुका था, मेरे गुरुजी भी पढ़ाए थे ऐसे. मैं क्या बोला, वो तो बाद में, स्टार्टिंग में मैं गुरुजी से क्या बोला, होगा. तो मैं क्या किया, गुरुजी का वाक्य पर शक किया. जो गुरुजी का वाक्य था, अष्टाध्यायी के पीछे विश्वजनीन सिद्धांत नहीं है, इस वाक्य पर मैं शक किया. वह शक करने से ही मेरा शोध कार्य शुरू हुआ ना, आरंभ हुआ ना. शक करना ही उसका आरंभ था, है ना. रिसर्च में, शोध कार्य में फर्स्ट स्टेप शक करना ही है. आनंदवर्धन देखते हैं कि कोई बोल दिया है लक्षणा ही काफी है, व्यंजना की कोई जरूरत नहीं है, व्यंजना की कोई आवश्यकता नहीं है. तो वे देख लेता है, समझ लेता है, नहीं नहीं यह वाक्य सत्य नहीं है, मैं इस पर शक करना है, व्यंजना की जरूरत है, व्यंजना की आवश्यकता है, मैं इसको स्थापित करना चाहिए, इसके लिए मैं कितने भी वाद चाहिए उन वादों को मैं स्थापित करना चाहिए, ऐसा सोचता है ना. सोचने से ही शोध कार्य आनंदवर्धन का शुरू हुआ, है ना. भट्टनायक साधारणीकरण का प्रतिपादन किया और भोज्यत्व, भोक्तृत्व, ये सब का प्रतिपादन किया. अभिनव गुप्त पढ़ लेता है और देख लेता है, समझता है साधारणीकरण तो ठीक है, थोड़ा यह तो मैं समझ सकता हूँ, श्रीशंकुक से तो अच्छा है, अनुमितिवाद को छोड़कर थोड़ा आगे गया है, मगर कोई कमी है इसमें, यह सच नहीं है, इसमें सत्य नहीं है, मैं थोड़ा आगे जाना है. अभिनव गुप्त क्या किया, भट्टनायक पर शक किया है, यह सत्य नहीं है, समझा है. समझने से ही अभिनव गुप्त आगे चल सका, है ना. तो इसका मतलब हो गया स्केप्टिक होना आवश्यक है, जरूरी है. स्केप्टिक होने से ही शोध कार्य हो सकता है, नए सोच मिल सकते हैं, नए सोच सकते हैं, है ना. क्रिएटिविटी कभी भी होना चाहिए तो उसके लिए स्केप्टिक होना जरूर होता है, आवश्यक होता है. जो भी एक आदमी बोलता है उस पर शक करना, जो भी बोलता है उसको शक करना, ये ठीक नहीं है.
शायद ये दीवार ये रंग में है बोलता है तो नहीं नहीं ये दीवार वो रंग में नहीं है, ये तो मूर्ख काम है, ऐसा नहीं करना। और इसके अंदर सांप है, हाथ मत रखो बोलता है तो नहीं नहीं मैं देखता हूँ, हाथ रख के देखता हूँ कि सांप है कि नहीं, हाँ, सांप तो काट देती है ना, ऐसा नहीं करना। वो उसके लिए भी एक पद्धति होता है, जिसको हम शक करना, जिसको शक नहीं करना, एक पद्धति से हम जाए तो एक इंटरप्रिटेशन। मैं थियरी क्या है बता रहा था ना, थियरी क्या है, एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी था। घर में लाकड़ घर है, घर में से आवाज आ रहा है, लाकड़ घर में आवाज कैसे आ सकती है, यह प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम है, इंट्रीगिंग क्वेश्चन। इसके ऊपर हम सोचे, एक समाधान निकला, बिल्ली है अंदर, एक थियरी है, बिल्ली है अंदर, एक थियरी है, एक एक्सप्लेनेशन है, एक आंसर है। एक आदमी आकर बता दिया कि बिल्ली अंदर है, इसके ऊपर हमको शक हो गया। हम सोचे कि नहीं 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 बिल्ली नहीं हो सकता है, हमको लगा कि कोई भूत हो सकता है अंदर। हम बोलिए कि भूत है अंदर, कोई दूसरा है तो हम भूत को मानते ही नहीं है, भूत कैसे हो सकता है। वो बोलता है नहीं नहीं कोई आदमी पहले था, उसको बंद कर दिया अंदर, वो अंदर से बाहर आने के लिए तड़प रहा है, इसलिए आवाज हो रहा है। ये सब एक के बाद एक जो एक्सप्लेनेशंस हम बोलते हैं ना, एक्सप्लेनेशंस एक रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, एक क्वेश्चन के लिए जो मिल रहे हैं, ये सब पहला जो क्वेश्चन आंसर था, उस आंसर पर शक करने से ही मिल रहे हैं, उस आंसर को नहीं मानने से ही आ रहे हैं, उस आंसर का सत्यत्व पर शक करने से ही आ रहे हैं। इसलिए शक करना, स्केप्टिक बनना शोध कार्य में आवश्यक होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का पहले जो जो आंसर्स थे, सब आंसर्स को पढ़ना है, उसको ही हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। शोध कार्य में फर्स्ट चैप्टर में रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, जो कुछ भी पहले बिल्ली का स्टोरी, भूत का स्टोरी, आदमी है अंदर, इसका स्टोरी, सब कुछ दिया गया है, सब कुछ कर सकते हैं। खोल कर देखें तो कुछ भी नहीं है, खोल कर देखे, घर को अनलॉक करके देखे तो बिल्ली नहीं है, भूत नहीं है, आदमी नहीं है, क्या हो रहा है अंदर। ऊपर से वो छत फाड़ गया, छत फाड़ने से सब नीचे आकर आवाज आ रहा है, ये आंसर भी मिल सकता है बाद में, मगर तब तक टेम्पोररीली ये सब आंसर्स तात्कालिक रूप से ठीक ही है। बाद में एक अच्छा आंसर, सही आंसर भी मिल सकता है, जैसा कि अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद का मिल गया, तब तक सब लोग बोलते गए। अभिनव गुप्त का जब अभिव्यक्तिवाद आ गया तो अब कोई दूसरा कुछ भी नहीं बोल रहा है, फाइनल हो गया है, छत का आंसर मिल गया है ना। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद कैसे है, ये छत जो अनलॉक करके देखे तो सच्चाई मिल गया। ऐसा ही शोध कार्य चलते रहता है, एक आंसर के बाद एक आंसर आते ही रहता है, एक थियरी के बाद एक थियरी, एक एक्सप्लेनेशन के बाद दूसरा एक्सप्लेनेशन आते ही रहता है। हम शोध कार्य को आगे चलाते ही रहना है। वी हैव टू टेक द रिसर्च वर्क फॉरवर्ड, whatever is the answer that is available already, we should be doubtful about the veracity, about the validity of the answer that is available today. That nature of being doubtful about the validity or veracity, factuality, truthfulness of the statement, that is answer that is available today, is called being skeptic. So that is the positive side of skepticism. So this nature of being skeptic is called skepticism. What is it called? Skepticism. Okay, this is the positive side. Same thing happened in India when Buddha started his expedition. Mahavira started his expedition. Today we call Buddhism, Jainism, Ajivaka tradition and all these traditions as Avaidika traditions, right? You know that? We call them Avaidika traditions, and there is another name for all these traditions. You know what is that name? Nastika traditions also. Vaidika traditions are all called Astika traditions, and
In these Nastika traditions, the main feature of these Nastika traditions is not to accept Veda Pramanya. This is what we say, right? What is meant by that? What is meant by that? They were doubting the veracity, validity of the statements from the Veda. Right? On the other side, the Vaidikas were accepting the veracity and validity of the statements from the Veda. So, as per this point that being skeptic is good, research has to go forward. What they did is also correct, right? What Buddhists did, what Jains did, to doubt the validity of the point that Vedas are giving us the right knowledge is also correct. But I told you that being skeptic is not always correct. The way if somebody says that there is snake, if you doubt and put your hand, you may get bitten. Right? So, to doubt everything that the other person says is also completely ridiculous. What to doubt, what not to doubt, also there has to be some system. There has to be some method. Right? What these Buddhists told themselves is, let me doubt everything. Let me doubt every source of knowledge. For source of knowledge, what is the word in Sanskrit? Pramana. Let me doubt every source of knowledge that is available to me, and let me doubt every source of knowledge that the Vaidikas are actually following. And what is the other source of knowledge? They thought my own experience, my own personal experience is my pramana. Let me do dhyana. Let me do my own internal introvert, antarmukha, adhyatmika sadhana. Whatever I get, that is my guide. Let me proceed in that direction. This so-called skepticism may work in the research that we are doing in a university system, or in the research that we do in physics, the research that we do in chemistry, or botany, or zoology. But the area where the Vaidikas and Buddhists are interacting with each other is that's what Shankara says. You are talking about something which is supernatural. You are talking about something which is not worldly. It's not like physics, it's not like chemistry, it's not like botany. You are talking about something which is beyond all this. Then you have to have a source of knowledge which can guide you in that direction. And he said, Vedas are the source of knowledge for such materials. If you have any other question, okay, go with physics, go with chemistry. But if you are dealing with supernatural, then the guide has to be only supernatural source. That's how you have to decide which source of knowledge is better, right? So what Buddha did is this, and what Jain Mahavira did is also this, and you have the replica in modern Western philosophy. Friedrich Nietzsche, for example, you might have heard this name, Friedrich Nietzsche. Okay, if you have not heard, please make a note. Nietzsche. Actually, looking at the spelling, many Indians pronounce his name as Nishche also. Very famous name in Western philosophy. He says that I don't believe in any statement made by anyone. And his way of thinking is, when somebody says, I believe in God, there is God, he doesn't say there is no God or there is God. He says, all I understand is that this person is saying, I believe in God. So when he says there is God, it only means that he believes that there is God. समझ गए? I don't argue with you. I don't say whether there is God or there is no God. All that I understand is that you say that there is God. है ना? अगर तुम बोलते हो मैं भूखा हूँ, तो all that I understand is that you say that you are hungry. I don't understand that you are really hungry. You are saying that
you are hungry. That's the way I understand it. That's all. That's what Friedrich Nietzsche said. Okay, if someone says this wall is pink in color or purple in color, light purple in color, he says, yeah, maybe the wall is light purple for you. That's what your statement is. Actually, that's nonsense, right? That's light purple whether it is for you or for me, it is in the same color. But if there is a statement that this is light purple in color, to say that, oh, I don't understand that it is light purple in color, all that I understand is that you say that it is light purple in color, is ridiculous. Friedrich Nietzsche was not such a fool to say that. He said, okay, yeah, that's light purple in color, I understand. But when you say that about something like there is Amit Bhattacharya inside this room, you went and asked whether there is Amit Bhattacharya inside this room or not. Somebody told you that, yes, he is there inside, and you went inside and he was not there. Then he says, oh, who is there? His name is Narayan Bhattacharya. Oh, I thought he is Amit Bhattacharya. So, when somebody says that I believe in God, the first question is, who you think is God? What you think is God? He might be thinking about something as God, and he might be saying that that is God. And later, you realize that what he is believing to be God may not be God at all. So if an atheist comes and tells you, I don't agree with you, you believe in God, then your first question to him is, what do you think I believe in God? What do you think I consider God to be? You should ask them, right? No, I know whom you think God is, and he says that I disagree with that. How does he know? For example, reverse of what we have said, somebody told that Amit Bhattacharya is not there inside. Okay? While you are in conversation, somebody came out of the room and you said, hey, hello Amit, how are you? And you said Amit Bhattacharya is not there. Oh, his name is Amit Bhattacharya? I did not know, he says. Right? Similar is about God also. So, you argue with an atheist. After some time, he says that whatever now you have said, you have described as God, I agree, he is there. But I thought you considered something else to be God. So he argues with you unnecessarily, right? So what Nietzsche says is, to establish a conversation, first of all, you have to understand what the other person is saying. So for that, you have to first of all understand his statements, the way he is speaking, about what he is speaking. यह तो अपने वाद पद्धति में है ही. हम वाद पद्धति में भारतीय परंपरा में बोलते थे अनुवाद. एक वाद करना है, पूर्व पक्षिन जो बोलता है, पूर्व पक्षिन का वाद को हम अनुवाद करना है. क्या बोलते हैं? अनुवाद. पहले पूर्व पक्षिन का अनुवाद करना है. अनुवाद करके उससे पूछना है, यही है ना आपका वाद, यही है ना पूर्व पक्ष, यही है ना, तो मैं अब इसका खंडन करता हूं. तब से करना है. यह ऐसा एक पद्धति चले आ रहा है भारतीय परंपरा में. यह फ्रेडरिक नीशे को पता नहीं था, इसलिए वो बोल दिया कि पहले तुम उसको समझना चाहिए, उसके संदर्भ में समझना चाहिए. तो ठीक है, अच्छी पद्धति है ना. और बोलता है उसके आगे कुछ भी नहीं है. वह क्या बोलता है वह उतना ही है, उसके बारे में खंडन ही नहीं करना. और उसके बाद में जो थियरी आता है वो भी नहीं करना. ऐसे ही चलते रहता है. एक स्टेटमेंट रहता है, उसमें एक फैक्ट रहता है, उसमें एक ट्रुथ रहता है. इसमें मुझे कोई लेना नहीं है, लेना देना नहीं है. वह तो इसका अर्थ है सत्य नहीं है. कोई भी सत्य नहीं होता. There is no truth anywhere. All that is there is the belief that there is a truth in the other person's statement. Okay? यही बौद्धों में हुआ, यही जैनों में हुआ था. वे भी बोलते थे कि हम जो कुछ भी समझते हैं
यह जो विश्लेषण वह कर रहा है उस विश्लेषण से हमको इतना समझ में आ जाता है कि वह क्या सोच रहा है, मगर वह क्या सोच रहा है यह है इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका हमको तो कोई प्रमाण नहीं मिला है। बोलते जाते हैं, ऐसे ही वाद करते गए। इसको करने के लिए वे रिगरस मेथडोलॉजी, इतना रोबस्ट बलवान तर्क को डेवलप कर दिए बुद्धिज्म में, और करते गए एक प्रमाण को छोड़कर, वेद प्रमाण सिर्फ उसको छोड़कर सब कुछ करते गए, इसलिए कि मुझे प्रमाण नहीं चाहिए। अगर तुम कुछ बोल के जाते हो उसके ऊपर मैं विश्वास नहीं करता, वह सत्य है इसका मैं विश्वास नहीं करता, मैं खुद सोच के जाता हूँ। इस आर्ग्यूमेंट में एक फ्लॉ है, एक बलहीनता है। ये है कि हम दोनों बैठकर कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं और तुम बोलते हो कि हाँ तुम जो बोल रहे हो वह तुम्हारे लिए सच है, मैं जो बोल रहा हूँ वह मेरे लिए सच है। कॉन्वर्जेशन कैसे बन सकता है, संभाषण कैसे बन सकता है? तुम्हारा सच तुम्हारे लिए है, हमारा सच हमारा लिए है, जो संभाषण बन ही नहीं पाता है ना। और एक और दूसरा बलहीनता इसमें यह है कि वे बोलते हैं कि गुरु नहीं चाहिए। अगर गुरु नहीं चाहिए तो बुद्ध कौन है? बुद्ध, बौद्धों के लिए बुद्ध कौन होता है ना। हम बुद्ध को इसलिए मानते हैं कि बुद्ध हमें बोला है ऐसा करो, तो वह गुरु ही हो गया ना, बुद्ध ही उनका प्रमाण हो गया। हम बुद्ध को मानते हैं इसलिए कि बोलने से वे बुद्ध के परिवार बन गए हैं, बुद्ध के अनुयायी बन गए हैं और बुद्ध उनका गुरु बन गया। फिर भी बोलते हैं कि हमको गुरु नहीं चाहिए, हम किसी का नहीं मानते। किसी का नहीं मानते इसलिए कि किसी का नहीं मानो इस तरह कोई बताया है हमको, इसमें सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है ना। किसी का नहीं मानो, क्यों? एक बोला है किसी का नहीं मानो बोलकर, मैं उसका फॉलोइंग करता हूं, इसलिए मैं एक का मानता हूं। क्या मानता हूं? किसी का नहीं मानो बोलकर बोला है उसका मानता हूं। इसमें सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अगर मानना भी है, किसी का मानना प्रारंभ करते हो तो मानने से प्रारंभ करते 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 तुम जहां तक जा सकते हो वही वेद है ना। वेद क्या है? गुरु, अगर गुरु का ही मानना है, एक गुरु तुमको मिल गया, वह बोलता है कि किसी का मत मानो, तुम मानना शुरू कर दिए। वह गुरु क्या बोलता है? किसी का मत मानो से वो स्टॉप नहीं करता है, मैं एक मानता हूं बोलता है, तुम भी वही मानना शुरू करते हो। वो मानकर कहाँ ले जाता है? शायद एक बुक पर एक बुक पर लेके जाता है, किसी रैंडम बुक, राइट, ले जाता है। यह इनका वेद होता है ना। सबके लिए ऐसा एक एंड होता है, सबके लिए। इसको ही हम अनवस्था दोष बोलते हैं। अनवस्था दोष में अंतिम जगह, एक जगह पर स्टॉप करना पड़ता है। जहां तुम स्टॉप करोगे वह तुम्हारा वेद हो गया है, तुम्हारे लिए एक प्रमाण हो गया। सब कुछ सब लोगों के लिए ऐसे ही होता है। फिजिक्स है, फिजिक्स को थोड़ा पढ़ना है तो पहले जो फिजिक्स है वहां तक जाते हो, वहां तक जाते हो। पहला जो फर्स्ट एग्जाम्स है फिजिक्स में, वहां तक जाना पड़ता है ना। एक फर्स्ट पॉइंट को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर ही बिल्ड होता है, सब सब्जेक्ट बिल्ड होता है। वहां तक तुम गए तो वह वेद के समान होता है, मगर वह वेद नहीं हो सकता, इसलिए कि जहां तक तुम गए हो वह सच है। इसके ऊपर तुमको कोई विश्वास हो नहीं सकता कि कौन बोला है, किस लिए वह सत्य है। उसको सत्य मानने के लिए क्या दूसरा प्रमाण है कि वह सत्य है ना। इसलिए कोई भी यह नहीं बोल सकता है कि मैं एक अंतिम प्रमाण तक गया हूं, वही मैं मान सकता हूं, मगर वह वेद नहीं है, ऐसा नहीं मान सकता। सभी के लिए अलग अलग वेद हो सकते हैं, मगर सब किसी न किसी वेद तो होता है। मगर जब वेद को मानना ही है तो ऐसा वेद को मानो जिसमें सच है।
अगर इसमें सच है, इसको प्रमाणित करना है दूसरे तरीके से तो करो, मगर कोई वेद को प्रमाण मानता है उसको देखकर हंसना नहीं, अरे तो ये तो वेद को मान रहा है। तुम तो किसी न किसी वेद को मानना ही पड़ता है ना। वह वेद अगर गलत बोल रहा है तुमको तो मिसलीड हो जाओगे ना, भटक जाओगे, रास्ता गलत रास्ता हो जाएगा। हमको सच रास्ता बनाने वाला एक वेद मिल गया तो उस पर भरोसा करो। उस पर भरोसा करने पर तुम स्टार्ट करो, वहां से कुछ दूर तक चलो। अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो तुमको तब शक करो वेद के ऊपर, वेद प्रमाण के ऊपर तब शक करो। मगर प्रारंभ तो करना है ना, सब लोग तो प्रारंभ करना है, सब लोग कहीं ना कहीं प्रारंभ करना है। वह प्रारंभ के लिए शंकराचार्य के क्या बोलते हैं, अगर सुपर नेचुरल के बारे में, अतीन्द्रिय के बारे में प्रारंभ करना है तो नेचुरल चीज, फिजिक्स जो नेचुरल के बारे में बताता है वह उसका सोर्स नहीं हो सकता। इसके लिए वेद प्रमाण चाहिए ही, है ना। ऐसा एक प्रमाण तुमको मिलना ही है। इस तरह मानकर वैदिक लोग वेद को प्रमाण मान रहे थे। बुद्ध और महावीर आकर इसको ढकल दे, इसको they threw it off. And what happens because of this is you have lost all the source where you were standing. For example, you are standing on this land, somebody removes this. You are standing on a carpet and somebody removes it. All that happens is you will fall down. Once you fall down, you lose your way and you आप भटकना शुरू कर देते हो। एक बार भटकना शुरू करते तो कहाँ जाते हो किसी को पता नहीं। पतंग उड़ाते हैं ना, धागा है, अगर धागा को कट कर दिए तो पतंग किधर चले जाता किसी को पता नहीं। ये बौद्ध और जैन धर्म में ऐसा हो गया, पतंग को वो धागा को काट दिए, वैदिक प्रमाण जो था उस वैदिक प्रमाण को काट दिए तो क्षणिकवाद आ गया, विज्ञानवाद आ गया, माध्यमिकवाद आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा। इतने वाद बनते गए कि कहीं भी वह सत्य मिल रहा नहीं था उन लोगों को। अब भी ऐसे ही चलता है, चलते रहता है। इन लोगों का जो रेप्लिकास आए हैं, फ्रेडरिक नीशे वगैरह, इनमें भी वही आया है। फ्रेडरिक नीशे के जो भी फॉलोअर बनता है भटकता है। अब हम पोस्ट मॉडर्न के बारे में बात कर रहे थे ना, जॉकस डेरिडा वगैरह, ये सब इसी के फॉलोअर्स हैं। किसका? स्केप्टिसिज्म के फॉलोअर्स हैं। एंटायर पोस्ट मॉडर्निज्म स्केप्टिसिज्म के फॉलोअर्स हैं। जॉकस डेरिडा यहां तक जाता है कि जो कुछ भी तुम बोलते हो वह बोलने की सत्य, बाद में उसको मैं नहीं मानता। लिखते वक्त भी पोस्ट मॉडर्न लोग, जॉकस डेरिडा के फॉलोअर्स क्या करते हैं, अंडर इरेजर बोलते हैं। इसका अर्थ यह है, यह अंडर इरेजर है। अंडर इरेजर का मतलब है अब तक ही मैं उसको मानता हूं, बाद में उसको इरेजर से निकाल देता हूं। एक क्षण के लिए सत्य है, बाद में उसको छोड़ देता हूं। और जो कुछ भी तुम बोल रहे हो इसका अर्थ है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका अर्थ वही है, इसका अर्थ दूसरा भी हो सकता है। जो कुछ भी अर्थ प्रेक्षक ले लेगा, जो श्रोता ले लेगा, वह सब उसके अर्थ ही हैं। क्या मतलब? हम इसके बारे में बात कर रहे थे। मूवी है, मूवी का अर्थ क्या है? 500 ऑडियंस है तो 500 मीनिंग्स है। 500 मूवीज चल रहे हैं, हाँ ठीक है, 500 मीनिंग्स तो चलते हैं। बाद में मूवी के बाद हम उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं तो एक आकर बोलता है मूवी बहुत अच्छा था तुम्हारे लिए। तुम बोलोगे ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए हाँ, मेरे लिए गिच्छा है। ये गिच्छा क्या है? मेरा मतलब है, मेरा शब्द है, मेरा मतलब है। और तीसरा आदमी आता है, कैसे है मूवी? बोले तो तुच्छा है बोलता है। ये तुच्छा क्या है? मेरा शब्द है, मेरा अर्थ है। तुम्हारे बीच में कॉन्वर्जेशन होने का कोई चांस ही नहीं रहता है ना। हर एक का एक एक अर्थ होता है। तो अगर ये कॉन्वर्जेशन ठीक होना है तो कम से कम हम मानना है कि दूसरा आदमी क्या बोल रहा है
उसमें मेरा भी कुछ समानता है, मेरा भी कुछ समानता है। वह बोलता है कि हीरो बहुत अच्छा था, हम ये मानना है कि हीरो शब्द का उसमें जो अर्थ है उसमें मेरा भी कुछ अर्थ है। मैं हीरो का क्या अर्थ लेता हूं उस अर्थ वही भी ले रहा है, थोड़ा सा कॉमननेस है, ऐसा मानकर भी हम चल सकते हैं, है ना। अच्छा है, इस शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ अलग होगा, तुम्हारा अर्थ अलग होगा, थोड़ा तो कॉमन है, नहीं तो कॉन्वर्जेशन ही नहीं चलता है। जाकस डेरिडा के ऊपर यही क्रिटिसिज्म था कि वह पार्लियामेंट को क्लोज करता है। पार्लियामेंट को क्लोज करने का मतलब कॉन्वर्जेशन को बंद कर देता है, कॉन्वर्जेशन हो ही नहीं सकता। तो वो बोलता है इससे क्या फ़ायदा है, ये फ़ायदा यही है कि सब प्रेक्षकों को मैं स्वातंत्र्य दे रहा हूँ, सब प्रेक्षक अपने अपने अर्थ बता सकते हैं। हाँ देना है, हम तो नहीं मानते कि एक बोलता है फिल्म अच्छा है, एक बोलता है फिल्म अच्छा नहीं है, इसीलिए तो एक हिट होता है एक फ्लॉप होता है, ये सब तो चलते रहते हैं ना। मगर इन दोनों के बीच में इस फिल्म के बारे में चर्चा होना चाहिए, तो थोड़ा तो कॉमननेस होना है ना। हम शोध कार्य करना है, वहाँ भी संभाषण होना चाहिए। हम विमर्श करना है, आलोचना, एक साहित्य ग्रंथ के बारे में, एक काव्य के बारे में आलोचना करना है। एक आलोचना करता है एक आदमी, तो दूसरा आदमी उसको पढ़ना है, तो उसमें थोड़ा कॉमननेस होना है ना। अगर हम बोलते गए तो हाँ ये आलोचना तुम कर रहे हो ना, रख लो अलमारा में रख लो, तो क्या होगा, मैं क्यों चर्चा करना है इसके बारे में। इस तरह not only Jacques Derrida, Foucault, Lacan and other postmodern thinkers also, their foundation basically is that there is no truth. Knowledge क्या है फिर? फूको बोलता है among postmodernists, फूको, उसका नाम फूको है अरे क्या ये फूंकना, ऐसा फूकना ये नहीं है, ये स्पेलिंग को फोकाल्ट पढ़ सकते हैं। स्पेलिंग को ऐसे ही इंग्लिश के तरह पढ़ते हैं तो फोकाल्ट होता है, मगर वो फ्रेंच है इसलिए उसको फूको बोलकर प्रोनाउंस करते हैं। स्पेलिंग से देखें तो वो फोकाल्ट है। देखिए हम ईयन रखते हैं ना, मार्क्सियन, ऐसा फूको से फॉलो करने वाले, ऐसा बोलने के लिए हम फोकाल्टियन बोलते हैं। फ्रेंच में ऐसा होता है, कभी वोवेल्स आते हैं अंत में तो जो कॉन्सोनेंट साइलेंट हो गए वो साइलेंट कॉन्सोनेंट सब तब बाहर आते हैं फ्रेंच में, है ना। अब जो ये एलटी था ये फूको में साइलेंट हो गया था, मगर हम IAN रखते हैं तो तब वो बाहर आ जाता है, उसको हम प्रोनाउंस करते हैं फोकाल्टियन, फोकाल्टियन अप्रोच। ओके, तो हम फूको से पूछे तो क्या है, सच क्या है, नॉलेज क्या है, तो फूको बोलता है एक हर एक समाज के लिए जो वह समाज बना दिया है वही सच है, दूसरे समाज के लिए वह सच होने की जरूरत नहीं है, सच होने की आवश्यकता नहीं है। वह भी वो बोलता है वही समाज में भी जो कुछ पावर में है, अधिकार में है, जो कुछ सत्ता चला रहा है, जो कुछ वो सत्ता में रहने वाले लोगों का अर्थ है, वो जो कुछ भी शब्द बना रहा है सत्ता में रहने वाले लोगों का सच है वह। और जो सत्ता में नहीं रहते वे लोग उसको नहीं मानते हैं, नहीं मानना भी बोलता है। और एक सत्ता इधर है और उसी समाज में 4 सत्ता केंद्र हो सकते हैं, 4 सत्ता केंद्रों में से 4-4 निर्माण आ सकते हैं, 4-4 शब्द हो सकते हैं, 4-4 वाक्य हो सकते हैं, 4-4 वाक्यों के 4-4 अलग, एक ही वाक्य का 4-4 अलग अर्थ हो सकते हैं। फूको बोलता है यह ऐसे ही चलता है, दुनिया तो ऐसे ही है, सत्ता केंद्र बहुत से हो सकते हैं, नॉलेज कुछ भी नहीं है, नॉलेज का कोई मतलब ही नहीं है। नॉलेज पावर के ऊपर निर्भर है, सत्ता के ऊपर निर्भर है। आज तुम सत्ता में हो तो तुम्हारा नॉलेज ही नॉलेज है,
कल कोई और आता है वो सत्ता में तो उसका नॉलेज ही नॉलेज है। एक ही समाज में बहुत से लोग सत्ता में रहते हैं, हर अलग अलग सत्ताओं में रहते हैं, तो अलग अलग नॉलेज है। नॉलेज का कोई मतलब ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, ऐसा बोलता है। ये सब सीख लेने से हमको क्या फायदा? नॉलेज नहीं है तो मैं क्यों आऊं कॉलेज में, है ना? नॉलेज नहीं है। वो बोलता है अब सत्ता में जो है वह जो नॉलेज बनाया है उसको पढ़ने के लिए तुम कॉलेज में आए हो। तुम्हारा बेटा लाता है ना, तब सत्ता में दूसरा होगा, वह दूसरा सीख लेगा, ऐसे ही होगा। हाँ, ये सीख लेने से क्या फायदा है? हाँ, सत्ता में एक है, वह जो नॉलेज बनाता है वही हम सीख लेते हैं, और दूसरे कॉलेज में दूसरा नॉलेज सीख ले रहे हैं, इसलिए कि दूसरा समाज है, उधर दूसरा सत्ता में है, दूसरा नॉलेज है। हम दोनों अगर कॉन्फ्रेंस में मिले, एक वर्कशॉप में मिले, तो वह बोलता है मुझे नॉलेज है, तुम भी बोलते हो तुम्हारा नॉलेज है, कॉन्वर्जेशन कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा नॉलेज अलग है, मेरा नॉलेज अलग है। नहीं नहीं, मैं तो प्रूव करता हूं कि मेरा नॉलेज सच है, तो पार्लियामेंट क्लोज हो गया। इसलिए कि प्रूव करने का कोई बात नहीं है इसमें, तुम प्रूव कर नहीं सकते हो, इसलिए कि तुम सत्ते में हो, इसलिए तुम उसको सच बोल रहे हो। दूसरा आदमी आया है, वह सत्ते में है, वह सच बोल रहा है, डिस्कशन का कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, हम वाक्यार्थ कर लेंगे, शास्त्रार्थ कर लेंगे, पूर्व पक्ष कर लेंगे, खंडन कर लेंगे, सिद्धांत कर लेंगे, तो नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा पूर्व पक्ष तुम्हारा ही है, मेरा पूर्व पक्ष मेरा ही है। तुम्हारा पूर्व पक्ष तो तुम्हारे सत्ता से आया है, मेरे पूर्व पक्ष तो मेरे सत्ते से आए हैं। सत्ता है, सबका सीक्रेट सत्ता ही है, ये फूको ऐसा बताते हैं। ये अंत में क्या हो गया? संभाषण का कोई आवश्यकता ही नहीं है, चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है, अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, अध्यापन की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करूं? फूको सबसे ज्यादा लिखा है, तुमको मालूम? जैकस डेरिडा सबसे ज्यादा लिखा है। क्यों मैं पढ़ना है? तुम जो लिख रहे हो वह तुम सत्ता में हो इसलिए लिख रहे हो ना। मैं फूको को क्यों पढ़ना चाहिए, है ना? इसमें सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन, मैं पहले ही बताया ना, ये स्केप्टिसिज्म में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन क्या है वो बताता है। इसको किसी को नहीं मानना, फूको को क्यों मैं ना मानना? फूको जो बोल रहा है, इसको इतने इतने बुक्स है, फूको के बहुत से बुक्स हैं, उन बुक्स को मैं क्यों मानना? वो बोलता है कि मैं नहीं मानना, इसको तुमको मनाना चाहिए। तुमको नहीं मानना, इसको मनाने के लिए मैं बुक लिख रहा हूं। पढ़ 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 कर तुम नहीं मानो, इसको सीख लो। सीख लिया, पहले तो सीख लिया, इसलिए नहीं, मैं नहीं मान रहा हूं, तुमको भी नहीं मान रहा हूं, इसलिए बुक नहीं पढ़ता हूं। तुम्हारा बुक भी नहीं पढ़ता हूं, है ना? इसमें ये स्ववचन व्याघात है। ये स्केप्टिसिज्म स्कूल में ही फ्रेडरिक नीशे हो या जैकस डेरिडा हो या फूको हो, एक तीसरा आदमी है लकान, वह साइको एनालिसिस से आता है। हम थोड़ा बहुत आपको साइको एनालिसिस के बारे में बोल चुके हैं, फ्रॉइड के बारे में आप समझते हैं ना। अनकॉन्शियस जो है, अजागृत। फ्रॉइड तो बोल रहा था, नादान आदमी फ्रॉइड, नादान नहीं है। हम बोलते हैं कि लकान के सामने तो नादान होता है। वो बोल रहा था कि एक अनकॉन्शियस है, मेरे जो पेशेंट आया है मेरे सामने, उसका जो अनकॉन्शियस है, मैं उसको वो जो कहानियाँ सुनता है, जो ड्रीम्स स्वप्न उसको आता है, उसका डेटा मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, उससे उसके अनकॉन्शियस के बारे में मुझे समझ में आया है, बोलता है। तो लकान बोलता है ऐसा अनकॉन्शियस तो कुछ नहीं है, इसलिए कि अनकॉन्शियस बनते जाते रहता है। यह समझने से मैं ट्रीटमेंट कैसे करूँ? हाँ, कल एक अनकॉन्शियस था, दूसरे दिन और एक अनकॉन्शियस बन जाएगा, वो चेंज होते ही जाएगा। मैं ट्रीटमेंट करना है तो मैं तो एक केस स्टडी बनाता हूँ,
उस केस स्टडी में तो कम से कम 1 साल का केस स्टडी बनाना है, तभी तो मैं उसको समझ सकता हूँ। मगर वो बोलता है 1 साल में ये अनकॉन्शियस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसलिए कि अनकॉन्शियस कोई परमानेंट चीज नहीं है, वह कंडीशन से बनते जाता रहता है। उससे क्या फायदा? वो ये बोलना चाहता है कि आप लोग अनकॉन्शियस वगैरह जो बनाए हैं, यह अपर कास्ट के लिए बना रहे हैं, ये सब सत्ता के लोगों के लिए बना रहे हैं, अग्रवर्ण के लिए बना रहे हैं, इसलिए आप नहीं समझते कि हर एक का अलग अलग अनकॉन्शियस हो सकते हैं। तो ठीक ही होगा शायद, मगर मैं क्या करूं? मैं डॉक्टर हूं ना, मुझे थोड़ा काम है, मैं काम करना है तो एक पद्धति होना चाहिए, एक पद्धति होना है तो मैं अनकॉन्शियस को समझना चाहिए, उसके लिए एक परमानेंट सिस्टम होना चाहिए, कुछ ना कुछ, है ना। तो यूनिवर्सिटीज़ में, अब यहाँ से आप जादवपुर यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आजकल फैशन क्या है? कौन सा फैशन है? पोस्ट मॉडर्निज्म। बोलिए, पोस्ट मॉडर्निज्म। आप जाइए जादवपुर यूनिवर्सिटी में और बोलिए कि जॉकस डेरिडा, कुछ न बोलिए, कुछ मत बोलिए, जस्ट जॉकस डेरिडा बोल दीजिए। यही धोती में जाइए, यही कुर्ते में जाइए, चोटी से जाइए, बोल दीजिए कि जॉकस डेरिडा, उसको शॉक लग जाएगा। अरे ये धोती वाला भी जॉकस डेरिडा को जानता है? आकर के बोलता है, अरे क्या बोला? जॉकस डेरिडा, बोलो, हम जॉकस डेरिडा के बारे में बात करेंगे। अरे ये पोस्ट मॉडर्न हो गया, बहुत फैशनेबल हो गया, जॉकस डेरिडा क्या बोला है? अब बोलना उनसे कि जॉकस डेरिडा जो बोला है वह जॉकस डेरिडा का अर्थ है। इसलिए मैं समझ नहीं पाता, मगर मैं जॉकस डेरिडा के बारे में जो समझ चुका हूं वह मेरा जो अर्थ है मैं बताता हूं, बाद में तुम तुम्हारा अर्थ मत बताना, कि इसलिए कि जॉकस डेरिडा का तुम्हारा जो अर्थ निकला जादवपुर यूनिवर्सिटी में वो दूसरा है, मेरा जो अर्थ निकला वो दूसरा है, हमारा तो रामकृष्ण यूनिवर्सिटी का ज्यादा एक अर्थ है ना। बोलना कि अरे ये ज्यादा समझ चुका है ज्यादा जॉकस डेरिडा के बारे में, इसलिए कि जॉकस डेरिडा वही तो बताता है, तुम्हारा अर्थ है, मेरा अर्थ है, एक अर्थ नहीं होता, ये सब है ना। फैशनेबल हो गए, अब वहां जाकर उनको डरा सकते हैं और ये भी बोल देना फूको, वो डर जाएगा। अरे ये फूको क्या है? ये धोती कुर्ता वाला, चोटी वाला, इसको भी, और इसको तो ये भी है, नाम भी है, ये धोती कुर्ता के अलावा, धोती शाल के अलावा ये नाम भी है। तुम जाओ, तुम गए और उनसे बोलो कि फूको, तो बोलता है अरे ये इतना फैशनेबल बन गया। क्या जानते हो फूको के बारे में? क्या जानते हो? देखो मैं कुछ भी नहीं जानता। जब फूको सत्ता में था, वह उनके सत्ता के काल में कुछ लिखा था, वह नॉलेज अलग है। मैं अभी सत्ते में हूं, मेरा नॉलेज अलग है, मैं इतना ही जानता हूं। फूको के बारे में कुछ नहीं जानते हो? जानता हूं यही कि वह सत्ता में था, वह सत्ता में होने के टाइम में कुछ लिखा था, इतना कुछ लिखा था, मगर बहुत बहुत कुछ लिखा है, वो तो जानता हूं, बहुत कुछ लिखा है, और वो सब अलग है। वो जानते हो क्या? जानने की क्या फायदा है? जब वो पावर में था तब वो ठीक था, अब तो वो पावर में नहीं है। कौन है पावर में? मैं। क्यों? अब मैं तुम्हारे सामने मैं हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना, मेरा ही सत्ता है। जब फूको बोलता है वह सत्य में, मैं बोलता हूं तो मैं सत्य में हूं, तुम बोलते हो तो तुम सत्य में हो। सत्य में जो होता है उसका नॉलेज ही नॉलेज है। मैं अब सत्य में हूं, मेरा नॉलेज ही नॉलेज है, बोल दो, है ना। यह मैं हंसी उड़ाने के लिए थोड़ा सा ऐसा कह दिया, आप थोड़ा उसके अंदर गए तो तुमको भी समझ में आएगा कि इसके लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट
जॉकस डेरिडा और फूको, लकान, इनके लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट में एक कॉमननेस है। ये कॉमननेस नीशे से मिलता है और स्केप्टिसिस्ट स्कूल से मिलता है, और एक भी है एनालिटिकल फिलॉसफी बोलकर, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज भी बोलते हैं उसको। उसका प्रोपाउंडर का नाम है विटगनस्टाइन, विटगनस्टाइन बोलते हैं। विटगनस्टाइन भी स्केप्टिसिस्ट है, स्केप्टिसिस्ट फिलॉसफी है विटगनस्टाइन का भी। आप इन नामों को जानना जरूरी है, इसलिए कि डराना है लोगों को। जाकर के कहीं फिलॉसफी डिपार्टमेंट में खड़ा होकर बोलना कि विटगनस्टाइन, ये फिलॉसफी के लोग ऐसे होते हैं, तुम विटगनस्टाइन भी बोलो सुनते नहीं, चलते रहते इसलिए कि उनके आंख इधर रहते हैं, आपको नहीं सुनते। तब जाकर कान में घट पुकारना विटगनस्टाइन, तब आएंगे हाँ क्या हुआ विटगनस्टाइन को बोलते हैं ना तब बोलना कि विटगनस्टाइन मैं जानता हूं। क्या जानते हो? विटगनस्टाइन ये बोलता है कि हर एक सिस्टम, हम शायद हम न्याय दर्शन बोलते हैं, न्याय दर्शन में जो कुछ भी है, न्याय दर्शन में जो कुछ भी बताया गया है वह एक लैंग्वेज गेम है। विटगनस्टाइन का शब्द प्रयोग ऐसा है, लैंग्वेज गेम बोलता है, वही एक लैंग्वेज गेम है। न्याय का हम बोलते हैं ना, न्याय के पद्धति में, न्याय के शास्त्र विधान में ऐसा माना गया है। एक ही शब्द को लेकर, एक ही वाक्य को लेकर मीमांसा के लोग ऐसे बोलते हैं, मगर न्याय लोग नहीं मानते हैं, वे इस तरह बोलते हैं। इसको वह बोलता है मीमांस के लैंग्वेज गेम में ऐसा है, न्याय के लैंग्वेज गेम में ऐसा है। कौन सा सच है वह नहीं बोलता। हर एक लैंग्वेज गेम में एक ही सच, हर एक लैंग्वेज गेम में अलग अलग हो सकता है। इस लैंग्वेज गेम में उसका मतलब यही है, उस लैंग्वेज गेम में उसका मतलब वही है। इस तरह बोलकर लैंग्वेज गेम का एक शब्द प्रयोग कर कर, लैंग्वेज गेम का एक सिस्टम बनाकर वह बोलता है हर एक सिस्टम का एक लैंग्वेज गेम है। हम क्या एनालाइज करना है? उस लैंग्वेज गेम को एनालाइज करना है। अगर इस्लाम है तो एक लैंग्वेज गेम है, क्रिश्चियनिटी है तो एक लैंग्वेज गेम है, हिंदुइज्म है तो एक लैंग्वेज गेम है। हर एक दर्शन एक लैंग्वेज गेम है। उस लैंग्वेज गेम के अंदर यह सच हो सकता है। इन एक ही पॉइंट को, एक ही सच को अलग अलग लैंग्वेज गेमों में ले जा कर हम चर्चा करना मुश्किल है। अगर हम समझते भी है कि मीमांसा के लोग ऐसे बोलते हैं, न्याय के लोग ऐसे बोलते हैं, इसी सच के बारे में न्याय के लोग इस तरह बोल रहे हैं, मीमांसा के लोग इस तरह बोल रहे हैं, तो विटगनस्टाइन बोलता है एक ही पॉइंट को दूसरे लैंग्वेज गेम्स में लेके जाना लैंग्वेज गेम एनालिसिस सिस्टम के विरुद्ध है। वह ऐसा एक पॉइंट को अलग अलग लैंग्वेज गेम्स में तुम लेके नहीं जाना। एक लैंग्वेज गेम का जो सच्चाई है वह उस लैंग्वेज गेम के लिए ही परिमित है। इसलिए इसको फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज भी बोलते हैं, एनालिटिकल फिलॉसफी भी बोलते हैं। मैं थोड़ा सरल शब्दों में बताने के लिए कोशिश किया हूँ, मगर आप जाकर के पढ़े तो बहुत कुछ है उसमें, मगर फाउंडेशन तो एक ही है। फाउंडेशन स्केप्टिसिज्म है उसमें। स्केप्टिसिज्म इसलिए है कि वे नहीं मानते कि एक सच्चाई है, एक ट्रुथ है। वे मानते हैं कि हर ट्रुथ एक लैंग्वेज गेम में बांधा हुआ है। अलग अलग ट्रुथ्स हो सकते हैं, अलग अलग सत्य हो सकते हैं, हर एक सत्य अलग अलग लैंग्वेज गेमों में होता है, ऐसा बोलता है। और आप ये सब बातों को सुनकर आपको लग रहा है कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं, कुछ भी मत करो। सत्य, अगर कोई बोलता है कि मैं सत्य तक पहुंच चुका हूं, तो वह उसका लैंग्वेज गेम है, उसमें पहुंच चुका होगा, ऐसा बोलते हैं। अगर तुम चाहते हो शास्त्र पढ़ना है, नहीं तो मैं अचिंत्य भेदाभेदवाद में हूँ, मैं अद्वैत में हूँ, तो उसका जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन को हिलाना चाहते हैं। फाउंडेशन को हिलाकर बोलना चाहते हैं कि तुम
जो कुछ भी पढ़ते हो उससे तुम कहीं भी नहीं पहुंच सकते हो। जो तुम मैं पहुंच गया हूं सोचते हो वो नहीं पहुंच गए हो, इसलिए कि तुम उसी लैंग्वेज गेम में घूमते बैठ गए हो, एक ही शास्त्र में एक ही विधान में घूमते बैठ गए हो। इस तरह करने से क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जिड्डू कृष्णमूर्ति बोलकर एक फिलोसोफर है, भारतीय ही है, थियोसॉफिकल सोसाइटी में पैदा होकर वहीं पले थे। उनका भी यही सिस्टम है, स्केप्टिसिस्ट सिस्टम है जिड्डू कृष्णमूर्ति का भी। वे बोलते हैं तुमको डीकंडीशन करते जाओ, जो कुछ भी अब तुम्हारे दिमाग में है वह कंडीशनड है, तुम कंडीशन किए गए हो। तुमको कोई बचपन से बोल दिया है कि यही पद्धति है सोचने का, यही इसका अर्थ है, इस तरह हो गया, उसको निकालते जाओ। मैं निकालने का पद्धति बताता हूँ बोलता है, और उसके स्पीचेस सुनकर हम डीकंडीशन कैसे होना, एक अर्थ इधर बैठ गया उसको कैसे निकालना, अर्थ लेने का एक तरीका बैठ गया उसको कैसे निकाल लेना, ये करते जाते हैं। तो वो बोलता है कि अंत में सत्य को तुम खुद पहुंच लोगे ऐसा करने से। बुद्ध भी ऐसा बोलता है ना, मैं जो ध्यान पद्धति बताता हूँ, मैं जो साधना का पद्धति बताता हूँ, करते जाओ सत्य तुम ही पहुंच जाओगे। सत्य हर कोई अपने आप पहुंचना है। महावीर भी ऐसा बोलता है, सत्य को हम अपने आप पहुंचना है। ये जिड्डू कृष्णमूर्ति भी वैसे ही बोलता है, अपने आप पहुंच सकते हैं। अगर मैं तो एक प्रैक्टिकली देख चुका हूँ कि कई लोग इस पद्धति को करते इतना उनका स्ट्रेस हो गया माइंड पर कि ऑलमोस्ट पागल हो चुके थे। एक आदमी तो एक प्रोफेसर था मेरा दोस्त, मैं तब छोटा था, मुझसे भी बड़े प्रोफेसर थे, वे मैथमेटिक्स के थे, मैं तो लिटरेचर में था। मेरे पीछे आते थे, पूछते थे कि सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं उनसे पूछा कि क्या बात है, मैं तो अलग सब्जेक्ट का हूँ, तुम तो अलग सब्जेक्ट के हो, क्या बोलना चाहते हो? नहीं आइए बैठिए, बोला। रोना लगा। मैं क्या बोला, क्या हुआ? मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, लोग आकर देखे तो समझ लेंगे कि मैं कुछ किया हूँ आपको, आप रो रहे हैं। तो बोलने लगा कि ऐसा हो रहा है, मुझे रोने आ रहा है। हाँ हो सकता है आप डिप्रेशन में हो, कुछ भी हो। वो बोलता है घर में भी मुझे ऐसे ही हो रहा है, घर में भी मेरी पत्नी बोलती है क्यों रो रहे हो, मुझे रोना आता है, क्यों रो रहे हो मुझे पता नहीं। मैं एक गेस कर लिया लॉटरी में, मैं बोल दिया कि तुम जिड्डू कृष्णमूर्ति को पढ़ते हो क्या? वो लॉटरी लग गया, वो बोल दिया कि हाँ। मैं बोला वही है। ये कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है तुमको इतना। ये क्या करते हैं ये स्केप्टिसिस्ट फिलॉसफी सब क्या करते हैं, तुम्हारे पैर के नीचे जो कारपेट है उसको निकाल देते हैं। अगर उसको निकाल देने के बाद चलना है तो वह तरीका बहुत मुश्किल तरीका है, बहुत ही कठिन तरीका है। अगर हर एक कारपेट को निकालते गए तो स्टेप्स डालना है तो और एक कारपेट पर चलना पड़ता है। उसके लिए बहुत ताकत चाहिए, उसके लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए अंदर का। इन लोगों का उतना शक्ति तो नहीं होता, वो चले जाते हैं और एक कारपेट निकाला जाता है गिर जाता है, एक कारपेट निकाला जाता है गिर जाता है, बोलता है अरे बाप रे मैं गिर जा रहा हूँ। तो अगर जिड्डू कृष्णमूर्ति में जाना ही है तो तुम में हिम्मत होना है, तुम्हें उसका पद्धति जानना है, कारपेट के बाद कारपेट में जाने का एक तरीका मालूम होना है। ये सब नहीं होता, रोना लगते हैं। मैं तो बहुत से लोगों को देखा हूँ ऐसा जिड्डू कृष्णमूर्ति के पद्धति। मैं जिड्डू कृष्णमूर्ति के बारे में कोई आरोपण तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा आरोपण इन लोगों के ऊपर है जो बिना सोचे चले जाते हैं इन सब फिलॉसफीज में और बाद में रोने लगते हैं। अगर हाँ मैं बोल रहा हूं ना, डी कंडीशनिंग लिख लो।
कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग का मतलब है तुमको बचपन से एक आदत बनाया गया, एक अभ्यास बनाया गया। इस अभ्यास से पूछे कौन है? तुमसे बात कर रहा हूं ना। हाँ, यहां देखो, मुझसे देखो। ओ क्या बोल रहा है? बोलो बोलो, क्या समझ? कोई बात नहीं है ना। इधर देखो, प्रश्न तुम कर रहे हो ना, इधर सुनो। हाँ, डीकंडीशनिंग समझना है तो कंडीशनिंग को समझना है। कंडीशनिंग क्या है? हमारे कुछ आदत होते हैं। हम एक मंदिर को देखे रास्ते में तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ हो जाता है ना? ऐसा होता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और कुछ लोग तो चुम्मा चुम्मा देते हैं, एक हाथ मुंह पे रख दे, है ना? क्यों देते हैं? शायद ये इस्लामिक या क्रिश्चियन हैबिट है। ये लोग हिंदू को होकर भी कोई मुस्लिम दोस्त होगा, नहीं तो क्रिश्चियन दोस्त होगा, उनके पास सीख लिए होंगे, चुम्मा देते हैं भगवान को। ये आदत है। जाते हैं रास्ते में तो कुछ ना कुछ करते हैं। ये कैसे हो रहा है? कैसे, क्यों हो रहा है? हाँ, आदत बचपन से एक आदत हो गया। आप सोचते हैं कि कुछ ऐसा मंदिर जैसा कुछ दिखा तो मैं ऐसे ही करना चाहिए। इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। एक एग्जाम्पल है कंडीशनिंग का। और अगर गुरु आ गया तो उठ जाते हो, नहीं तो बैठ जाते हो। ये भी एक कंडीशनिंग है। यू आर कंडीशनड टू बी लाइक दैट। ओके, इसी तरह हम अर्थ जो समझते हैं, बुक को जो समझते हैं, शास्त्र को जो समझते हैं, वे जितु कृष्णमूर्ति बोलते हैं ये समझने की तरीका में भी एक कंडीशनिंग है। इसको इसी तरह समझना है। इसको यह शब्द से इसी अर्थ को इस तरह ही निकाल लेना है। इसका एक कंडीशनिंग हो गया, इसलिए तुम इस तरह ले रहे हो अर्थ को, उसको छोड़ दो। इस शब्द का यही अर्थ है, एक कंडीशनिंग है। इस शब्द का अर्थ इसी तरह निकाल लेना है, यह एक कंडीशनिंग है। उसके बाद रीजनिंग इस तरह करना है, यह एक कंडीशनिंग है। जो कुछ भी तुम्हारे पास अभी है ज्ञान पाने के लिए, उसके बारे में आलोचना करने के लिए, वो सब कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग से आ रहा है, एक आदत हो गया, अभ्यास हो गया है। तुम क्या करना, बैठकर मुझ में क्या कंडीशन है, क्या कंडीशनिंग है, इसको निकालते जाना। हाँ, मैं इस शब्द का इस अर्थ इसलिए ले रहा हूँ कि अभ्यास ऐसा हो गया, मैं इस शब्द का आगे यह अर्थ नहीं लूँगा। मैं यह चीज़ को देखता हूँ तो वह मुझे ऐसा लगता है इसलिए कि मुझे ऐसा कंडीशनिंग हो गया, मैं उसको निकाल दूँगा। ऐसा करते गए तो जो चीज़ है वह जैसा आपको मिलना है, जैसा आपको उसको पाना है, वह वैसे ही तुम पालोगे, खुद पालोगे, इसलिए कि वह तुम्हारे पास है, तुम पा चुके हो। मगर उसमें रॉन्ग जो है उसको निकालते गए तो सच रह जाएगा तुम्हारे पास। ये तो ऑलमोस्ट रमण महर्षि क्या बोलते थे, तुम पा चुके हो, तुम में ब्रह्मानंद है, तुम्हारे परब्रह्म स्वरूप है, उसको जो अज्ञान है, माया है, उसको निकाल देना। ऑलमोस्ट इसी तरह है, मगर कम से कम इधर तो अद्वैत में या रमण महर्षि के फिलॉसफी में एक परब्रह्मा है, एक सत्य है, एक सत्य है, ऐसा एक विश्वास है। उस विश्वास को लेकर दूसरे को निकालते जा रहे हो, है ना? जितु कृष्णमूर्ति में ऐसा नहीं है। यह फाइनल विश्वास जो रखते हो उसको भी नहीं रखना, निकालते जाने पर सत्य वही तुमको मिल जाएगा। ये ऑनियन सिस्टम है। ऑनियन में हम लेयर्स निकालते जाते हैं ना। हाँ, निकालते गए तो क्या मिलता है लास्ट में? कुछ नहीं बचता। वह कुछ नहीं बचता, आप जितु कृष्णमूर्ति से बोले तो बोलता है कि वह कुछ नहीं बचना ही अंतिम सत्य है ना? वो जो आनंद मिलता है, जो स्थिति आपको मिलता है, ऐसा निकालते गए तो जो सत्य आपको फाइनली मिलता है वही पाने का चीज़ है, आप पाना है।
वह तो आप पालिए हैं क्या, मैं भी पालूं, तो मैं एक पा लिया हूं, तुम भी पाल सकते हो, मगर हर एक का अलग है। मैं तो पद्धति दे सकता हूं, मैं तो मार्ग बता सकता हूं, क्या तुम पहुंचोगे, कहां तक तुम पहुंचोगे, इसका तो कोई मैं डेफिनेशन नहीं से दे सकता, इसलिए कि वह भी कंडीशनिंग होगा, है ना, समझ गए। अगर यह भी एक सिस्टम है, ये भी कर सकते हैं, मगर यह करने के लिए तो इधर बहुत ताकत होना चाहिए, इसलिए कि डीकंडीशनिंग करते करते हम ये जो बेसिस था जहाँ से हम स्टार्ट हुए वो निकलते जाता है और हम बेसलेस हो जाते हैं, फाउंडेशनलेस हो जाते हैं। तो फाउंडेशनलेस चलने के लिए धैर्य चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो बहुत मुश्किल होता है। शायद इसीलिए मैं जो किसी को देखा वे उनके लिए मानसिक जो ग्लानि मिलता था ये सब करने के लिए, वो बहुत ग्लानि होता था उनका। तो मैं इतने मॉडल्स, फ्रेडरिक नीशे का एक, जी.डी. कृष्णमूर्ति का एक, जैकस डेरिडा का एक, फूको का एक, विटगेनस्टाइन का एक, सब जो कुछ भी बताया हूँ ये सब ये स्कूल में आते हैं। जो कौन से स्कूल? स्केप्टिसिज्म स्कूल में आते हैं। ये स्केप्टिसिज्म स्कूल हम हंसी हंसी में ऐसे बोल दिए हैं, इनको हम सीरियस में नहीं ले रहे थे, मगर उसको सीरियस लेने वाले भी बहुत होते हैं ना। वह भी एक सिस्टम है, वह भी एक मेथडोलॉजी है, वह भी एक फिलॉसफी है, इसलिए उसको सीरियस ही लेना है। मगर मैं क्या बोल रहा था कि यह स्केप्टिसिज्म सिस्टम में ही एक बलहीनता है, एक गलती है, फॉल्ट है, वह है सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन। ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन के वजह से वो सिस्टम ही हमको भटकाता है अंदर जाने के बाद। वह बोल सकता है, स्केप्टिसिस्ट बोल सकता है, तुम उसको भटकना इसलिए समझ रहे हो कि तुम एक स्टैंड ले चुके हो, एक जगह खड़े हो, इसलिए तुमको ये सब भटकना दिख रहा है। बोल सकता है हाँ ठीक है, वह भी ठीक है, हम तो एक स्थान ले चुके हैं, जो स्थान हम ले चुके हैं वह तो फिक्सेड नहीं है, वहाँ भी हम नए नए सोचे हैं। वेद प्रामाण्यों को माने हैं, फिर भी अद्वैत आया, द्वैत आया, विशिष्टाद्वैत आया, अचिंत्य भेदा भेद आया, इतने इतने नए नए सोच निकले ना। वेद प्रामाण्य को मानने से तो एक परमानेंट ट्रूथ तो नहीं आया, वह एक सिस्टम है। वेद प्रामाण्य मानने वाला सिस्टम, वैदिक सिस्टम एक सिस्टम है। उसी सिस्टम के अंदर बहुत स्वातंत्र्य भी है, स्वेच्छा भी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वही तो पहला दिन भी मैं बोल रहा था, शास्त्र स्टैग्नेट हो गए, शेल्डन पोलॉक बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम वेद प्रामाण्य को मानना एक कंडीशनिंग नहीं है, उस वेद प्रामाण्य को मानने से हम एक प्रिजन में नहीं हैं, उसमें बहुत कुछ स्वेच्छा है, उसके अंदर भी हम बहुत कुछ सोच चुके हैं। रस सिद्धांत में बहुत से सोच आए हैं, अलंकारिकों में बहुत से सोच आए हैं, काव्यात्म सिद्धांत बहुत से आए हैं, सब वैदिक ही हैं। वेदांत में बहुत से सोच आए हैं, नव्य न्याय, न्याय में नव्य न्याय है। इतना वैदिक वेद प्रामाण्य को लेकर ही हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, और वेद प्रामाण्य को लेना स्केप्टिसिज्म का विरुद्ध है। किसी प्रामाण्य को लेना स्केप्टिसिज्म का विरुद्ध है। इसलिए स्केप्टिसिस्ट आकर के बोलता है कि तुम लोग एक प्रामाण्य को ले चुके हो, यह तुम्हारा गलती है। हो सकता है, मगर यह गलती अच्छी गलती है, समझ गए? अगर गलती भी है तो बहुत अच्छी गलती है, बहुत मधुर गलती है, बहुत लाभदायक गलती है। अगर गलती भी है तो हम नहीं समझते कि इसको ये गलती है, अच्छी है, अच्छा किए हैं वेद प्रामाण्य को लेकर। और वेद प्रामाण्य क्यों लेना है, इसका भी एक तर्क है। जब वेद के पास जाना है, हम हर कोई चीज़ के लिए तो वेद में नहीं जाता है ना। मैं स्पेक्टिकल्स लेना है तो ऑप्टिकल डॉक्टर के पास जाता हूँ, वेद के पास तो नहीं जाता हूँ, है ना। मैं भूखा हूँ तो वेद के पास नहीं जाता हूँ, मैं खा लेता हूँ। मैं हर चीज़ के लिए तो वेद के पास नहीं जाता हूँ ना। वेद के पास जब जाना मुझे पता है तभी जाता हूँ। वहाँ से क्या सहाय लेना, क्या मदद लेना मुझे पता है, तब भी वेद के पास जाता हूँ ना।
इसलिए मैं वेद को लिया हूँ, वेद प्रामाण्य लिया हूँ, इस कारण से मैं बंदी नहीं हूँ, मैं प्रिजन में नहीं हूँ, और वेद प्रामाण्य को लेकर जो चर्चा मैं करता हूँ उस चर्चा में भी मुझे बहुत स्वेच्छा है, उस चर्चा में भी नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा के लिए अवकाश है। मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, बहुत कुछ करते आए हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए, इसके वजह से कोई स्टैग्नेशन नहीं होता है, हम रुक नहीं जाते हैं। और वह बोल सकते हैं स्केप्टिसिस की, यह करने से तुम बंदी तो नहीं बने हो, मगर एक तरफ चले गए हो, दूसरे तरफ जहां मैं गया हूं वहां आने का स्वेच्छा तो तुम खो गए हो, है ना, बोल सकते हैं। यह कुतर्क बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कुतर्क, बैड लॉजिक, सूडोलॉजिकल स्टेटमेंट्स है ये सब। ऐसा हम भी बना सकते हैं, बहुत से कुतर्क को, बहुत से सूडोलॉजिकल स्टेटमेंट्स को हम भी बना सकते हैं, इसलिए कि स्वेच्छा खोना भी एक स्वेच्छा है। लॉजिकल दिख रहा है ना, दिखने में लॉजिकल है मगर ये लॉजिकल नहीं है। स्वेच्छा खोना स्वेच्छा नहीं हो सकता, मगर हम बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा होना एक बुराई है। कैसे? तुम बुरा नहीं हो ना, बुरा होने में जो अच्छापन है वो अच्छापन अच्छा होने में नहीं है। ऐसे बना सकते ना, बहुत कुछ स्टेटमेंट्स बना सकते हैं ऐसे। इनको क्या बोलते हैं? जल्प बोलते हैं, सूडोलॉजिकल है, ये सब वितंड है। इसको लेकर के हम बहुत कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स बनाते जा सकते हैं। ये लोग ऐसे ही बात करते हैं, तुमको ये खोए हो, वो खोए हो। हम कुछ नहीं खोए हैं, वेद प्रामाण्य लेने से हम सब कुछ पाए हैं। यह मेरी मानता है, अगर आप नहीं मानते हो तो छोड़ दो, मगर मेरी मानता तो यही है। आप मानते हैं क्या वेद प्रामाण्य लेने से हम कुछ खोए हैं क्या? हाँ, नहीं ना? हाँ, स्केप्टिक, what thinking? Overthinking. Oh, skeptics are overthinking. Yeah, that's actually a very good observation. Probably when he saw this, he felt that skeptics are overthinking. Yeah, actually, that's one way of looking at it. Really, there is a lot of thinking in that. Maybe they went beyond a certain point. That's what he wants to say. Correct. But there is a method. There is an idiom in English. There is a method in the madness. That's an idiomatic expression in English. They say there is a method in the madness. If this is a madness, there is a method in that madness. है ना? तो मगर मैं, तुम लोग बच्चे हो, जवान हो, इसलिए तुमको परिचय तो देना है, ये सब है बोलकर, और उसके ऊपर मेरी टिप्पणी मैं दिया हूँ। आप नहीं मानिए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं भी वेद प्रामाण्य को नहीं मानकर स्केप्टिसिज्म में चलना चाहता हूँ, जाकस डेरिडा, फूको, लकान वगैरह लेना चाहता हूँ, तो आपको उसकी स्वेच्छा है, चले जाओ। मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता था। इधर से जाने से पहले आप लोग कोलकाता में हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी के नज़दीक में हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के नज़दीक में है, JNU लोग आते हैं, आपको पोस्ट मॉडर्न ये सब बता देते हैं। ये थोड़ा तो नाम सुनना है ना, जाकस डेरिडा कौन है, विटगेन्स्टाइन कौन है, फ्रेडरिक नीशे कौन है, वो क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, स्केप्टिसिज्म क्या है, ये सब सुनने से। मैं MPhil और PhD स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस कर रहा था, BS स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं। BS स्टूडेंट्स को तो अगर डर लग गया तो छोड़ दो, ये सब भूल जाओ। ये सब थोड़ा बड़े होने के बाद, MA MPhil PhD में आने के बाद सोचने लगोगे। अब तो ये सब थोड़ा फिलोसॉफिकल डिस्कशंस है, मगर सुनकर, कम से कम लाइब्रेरी में जाकर एक विटगेन्स्टाइन का बुक खोल दो, एक जाकस डेरिडा का बुक खोल दो, लकान का बुक खोल दो, फूको का बुक खोल दो, और फ्रेडरिक नीशे का परिचय ले लो। एक वेस्टर्न फिलॉसफी का एक इंट्रोडक्शन बुक है, द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी बाय विल डुरांट।
The story of philosophy by Will Durant. The story of philosophy by Will Durant. हर एक फिलोसोफर को वेस्टर्न फिलोसफी में जो जो प्रसिद्ध लोग हैं हर एक को बहुत अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करता है इस बुक में। उसके थोड़ा सा बायोग्राफी भी देता है और थोड़ा सा उनके जो सोच थे उनको परिचय भी करवाता है और एक से डिस्कशन जो है वो भी कनेक्शंस जो है वो भी बताता है इस बुक में। पढ़ते जाओ। तब फ्रेडरिक नीशे के फिलॉसफी जो जब पढ़ते हो तो मैं जो कुछ भी स्केप्टिसिज्म के बारे में बता रहा हूँ वहाँ मिलता है तुमको। उसको पढ़ने के बाद जब पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में पढ़ना शुरू करते हो तो पढ़ सकते हो। ये भी तुम बोल सकते हो कि सर ये सब ओवर थिंकिंग है। ये बोल रहा है ना ओवर थिंकिंग। हम इतना तो सोचना हमें पसंद भी नहीं है। हम जाकर नेट पढ़ लेते हैं, JRF ले लेते हैं, नहीं तो CSC एग्ज़ाम जो है वो लिख लेते हैं, नहीं तो हमारे सर्विस कमीशन के जो कुछ भी एग्ज़ाम्स है लिख लेते हैं, अंक मिलते हैं, चले जाते हैं। हम वहाँ जाएंगे ऐसा आप डर कर बेकामों का हम टाइम वेस्ट कर दिए हैं आज लास्ट टॉक में। ऐसा हम जाएंगे भी नहीं, आप डरो भी नहीं, हम सोचते भी नहीं, ऐसा बोल सकते हो। हाँ वो भी ठीक है, मगर मैं सोच रहा था कि मेरे जिम्मेदारी ये है कि तुमको बता दूं कि ऐसे भी चीज़ है। अगर तुम में हिम्मत है, तुम्हें पसंद है तो जा सकते हो, नहीं तो जाते जाते टाइम वेस्ट कर दिया बोल के चले जा सकते हो, है ना। नहीं सुनना भी अच्छा है ना। अगर फॉलो भी नहीं करना है, उनके बारे में पढ़ना नहीं है तो पढ़ो मत, सुन लो, कम से कम नाम तो सुन लो। कभी डराओ लोगों को। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेज ड्रॉपिंग बोलते हैं। फ्रेज ड्रॉपिंग का मतलब है कुछ शब्द छोड़ दो और लोगों को डराओ कि मैं जानता हूँ, है ना। किसी के पास जाकर के बोल देना शाब्दी भावना। क्या है शाब्दी भावना? शाब्दी भावना है, कहाँ मिलता है? हाँ शायद मीमांसा में मिलता है। क्या बोलते हैं? वह तो एक तरह का भावना होता है। है ना। आर्थी भावना एक और है, उतना भी बोलने की जरूरत नहीं। शब्दी शादी बोलकर चले आ सकते हो, फिर भी वो डर जाएगा, ये तो शास्त्री होता है, ये बहुत बड़ा मीमांसक लगता है। है ना। ऐसा करने से उसको फ्रेज ड्रॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज ड्रॉपिंग। एक संस्कृत में एक और भी प्रॉवर्ब है, कोशवान आचार्यः। क्या है? आचार्यः। ये कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं कोश को रट लेते हैं और शब्दों को बताते जाते हैं और लोगों को डराते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा स्कॉलर है दिखता है। ऐसा भी कर सकते हो ना। यह क्लास जो फाइनल टॉक था, इसको हम कोशवान आचार्य के रूप में भी यूज़ कर ले सकते हैं। इसलिए कि हम कम से कम नाम तो बता सकते हैं ना। कुछ लोग हैं, उसका नाम फ्रेडरिक नीशे है, इसका नाम जाकस डेरिडा है, इसका नाम फूको है। और स्केप्टिसिज्म भी एक है। क्या है स्केप्टिसिज्म? वो भी नहीं बोलना। स्केप्टिसिज्म क्या है उसको हम तुमको बता दिए तो स्केप्टिसिज्म का उल्टा है वो। इसलिए कि किसका भी कोई अर्थ नहीं होता, स्केप्टिसिज्म का भी कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम बता भी नहीं सकते। स्केप्टिसिज्म का एक प्रिंसिपल यही है कि मैं मत बोलूं, नहीं बोलूं,
नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैं इतना ही जानता हूं कि एक शब्द है, इसका वह शब्द है स्केप्टिसिज्म। मगर आप जानते हैं ना स्केप्टिसिज्म क्या है, अभी जान चुके हो ना? हाँ, ऐसा नहीं बोलना कि मैं स्केप्टिसिज्म नहीं जानता हूँ। स्केप्टिसिज्म जान चुके हो और फ्रेडरिक नीशे को जान चुके हो और हाँ हाँ फूको है, बहुत पसंद आ गया ना फूको बहुत पसंद आ गया, जाकर डेरिडा भी पसंद आ गया जाकर। अब तो तुम हिम्मत से बोल सकते हो कि मैं नए नए यूनिवर्सिटीज़ जो निकले हैं उधर जाकर उनको बता सकता हूँ कि मैं भी कुछ जानता हूँ जो तुम जानते हो, है ना? हाँ, वे भी कुछ जानते नहीं हैं, जाकर के देखो। वो मैं उसको हायर अलजेब्रा ऑफ सोशियोलॉजी बोलते रहता हूँ। मैं बताता हूँ हायर अलजेब्रा ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। ये अलजेब्रा हम जो करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है? इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का अर्थ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इतना ही है ना? अगर तुम समझना चाहते हो तो ये मैथमेटिशियंस आपको क्या बोलते हैं, एक ट्रायंगल है, इसका साइड ए प्लस बी है, इतना तक बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ ये है। अगर ये हम इसके अंदर और एक स्क्वायर बनाए तो यह ये है, यह बी है, इसलिए ये तो ए स्क्वायर बन जाता है, ये तो ए भी बन जाता है, ये भी ए भी बन जाता है, इधर बी स्क्वायर बन जाता है। इसलिए ए प्लस बी जो साइड है उससे जो स्क्वायर का एरिया बनता है वह ए प्लस बी होल स्क्वायर है, उसके अंदर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आए हैं, 2ab है। यह आपको विजुअली दिखा सकते हैं, है ना? मगर फिर भी कोई बच्चा पूछा कभी यह क्या बताता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या बताता है? कोई पूछता भी नहीं है। क्यों? ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? रट लेना है ना? इसका क्या मीनिंग है, इसको कैसे विजुअलाइज करना, इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। इस तरह हम बड़े बड़े इक्वेशंस लेते हैं अलजेब्रा में, उसमें इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री होते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तरह के। सेकंड डिग्री के एक्स स्क्वायर रहा तो सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है, क्यूब रहा तो उसको थर्ड डिग्री इक्वेशन बोलते हैं। उसमें एक्स प्लस वाई तरह के 2 वेरिएबल्स है तो इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स बोलते हैं, z भी है तो इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स बोलते हैं। 3 वेरिएबल्स का थर्ड डिग्री का इक्वेशन बन गया तो बहुत बड़ा होता है, उसका सॉल्यूशंस निकलना है बहुत मुश्किल होता है, सब कुछ चलते रहता है ना। बाद में करते वक्त हम नहीं पूछते हैं कि यह किस रियलिटी का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा एक ड्राइंग में तो कम से कम देखना है ना, विजुअलाइजेशन में आगे बहुत बढ़ते गया तो वो इक्वेशन, वो ग्राफ, वो ड्राइंग भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जिसका वह रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। उसको हम देखने में इतना हमको सोच भी नहीं रहता है, इसलिए छोड़ देते हैं, करते जाओ अलजेब्रा ऐसे। तो अलजेब्रा सिर्फ लेटर्स में रह जाता है, उसका रियलिटी रिप्रेजेंटेशन क्या है उसके बारे में हम सोचते नहीं है ना। इसी तरह ये लोग जो पोस्ट मॉडर्न सोशियोलॉजी बोलते हैं, ये लोग तुमको बोलते जाते हैं पावर सेंटर्स ऑफ नॉलेज। Power centers of knowledge create social constructs, and the social construct of the Bengalis at the time of the colonization was different from the post-colonial social construct of the power structure at the time of representation. आप क्या बोल रहे हैं? बंगाल में क्या चल रहा है बोलो? बंगाल में एक कॉबलर आदमी बैठकर सी रहा है, चप्पल बना रहा है, उसके बारे में क्या बोलता? नहीं, मैं बोलता हूँ एक पावर स्ट्रक्चर में द सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ द दलित, द कॉबलर हु इज एक्चुअली स्टिचिंग द स्लीपर is actually constructed in the circumstances of the post-colonial representation of the post-Marxist. चलते रहता है।
अरे मैं क्या पूछा हूँ? एक दलित जो कॉबलर है, चप्पल बनाते हैं, उसके बारे में बताओ। बोले तो इतना बड़ा सेंटेंस बनाते हो, उसमें क्या होता है? एक्स वाई जेड तरह शब्द, वही जेंडर, वही पावर, वही स्ट्रक्चर, वही सोशल कंस्ट्रक्ट, वही पावर आते ही रहता है। जैसा नव्य न्याय में अवच्छेद का अवच्छिन्नकत्व होते हैं ना, ऐसे बहुत बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं। नव्य न्याय में सुने तो डर लगता है ना, ऐसे ये इनका भी ऐसे सेंटेंस मिलते हैं मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न के लोगों के। क्या बोल रहा है आगे, कुछ दूर तक गए तो समझ में नहीं आता। इसलिए मैं बोल देता कि ये सब हायर अलजेब्रा ऑफ सोशियोलॉजी है। अलजेब्रा में जिस तरह लेटर्स ही सुनाई देते हैं, वो क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो सुनाई नहीं देता। इसीलिए इसी तरह इनका टर्मिनोलॉजी इतना बढ़ जाता है आगे जा कर के, वो इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बनाते हैं कि उससे क्या सोशियोलॉजी, शायद उसके मन में कुछ है ना। कवि हृदय हमको समझ में नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं? कवि हृदय। कवि हृदय का मतलब है कवि के हृदय में जो है। ये पोस्ट मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट के इतने बड़े सेंटेंसेस के पीछे कुछ न कुछ कवि हृदय तो है, मगर बहुत प्रौढ़ काव्य है। इतना प्रौढ़ कि उसके लिए बहुत बड़ा व्याख्यान लिखना है। वह व्याख्यान वह खुद लिखता है या हम लिखना है, ये समझ में नहीं आता। इसलिए हम प्रौढ़ काव्य को कैसे सुनते हैं? नैषद, अगर नैषद को सुनना है तो कैसे सुनते हैं? सुनते जाते हैं, समझ में तो नहीं आता है, व्याख्यान चाहिए, फिर भी सुनते हैं ना। इसी तरह सुनना है, छोड़ देना है इन लोगों का। मगर मैं एक सैम्पल तो बताया हूँ, जाकर के सुनो। पोस्ट मॉडर्न स्पीचेस रहते हैं, अगर सुनना है तो कहाँ जाना है? हाँ, लाइब्रेरी में सुना ही नहीं देता। लैब नहीं, लैब में भी नहीं। हाँ नहीं, इधर कैंपसेस है बहुत से कोलकाता में, उस कैंपसेस में जाओ, फ्री सेमिनार रहता है, समोसा चाय भी देते हैं। वो सेमिनार हॉल के अंदर क्रांति भी आ जाता है वहां की, वही बहुत क्रांति, दुनिया में सब क्रांति आ गया, क्लैप्स हो गए। बाहर आकर देखे तो क्रांति नहीं है, वही निराशा है। सेमिनार हॉल के अंदर तो बहुत ही क्रांति आ जाता है, पोस्ट मॉडर्न क्रांति है वो, है ना। थैंक यू। एक अनाउंसमेंट है। Respected teachers and dear students, it has been a wonderful series of lectures from Professor Paturi. All these days our students had had a very good opportunity of listening to good English. Though Professor has very good command over English and he can talk even in a higher level, higher standard English, he has successfully made it very easy so that even all of us could understand that. His wonderful grasp over the scriptures, knowledge, experience in academics, he has been guiding many research students in different fields. We have seen during his lectures when he moves from one discipline to another, it is so fluid to him. Even as a fish can swim in water, across the disciplines he can talk on any topic. This is something very wonderful and inspiring to our students. This has been a very good exposure for our students who are trained only in the traditional aspect of scriptures. Of course, that is the one which is actually needed. Professor Paturi also, on the very first day, he mentioned this learning English and presenting it to the Western audience and other people, it's all
it's all it's trash, not much valuable. But he mentioned it so rightly, you should be thorough in the fundamentals. He mentioned that. Fundamentals means what? In your Shastra. If you have a special paper, you have to be thorough in that first. Even if you don't learn English, that's not a problem. But this should be there, first one. Apart from this, if you can also add some moderate, decent English skill, that will be very helpful in guarding our culture and nation in global forums, which is very much necessary today. Pottery is a very good example before us. He has inspired our students. And one more thing about Pottery is, he has been so affectionate toward the students. Whenever I ask the students, you are supposed to go to your class, they used to say, no, don't we go and listen to his lectures? They kept on asking me this. And this is the success of the teacher. There may be professors who are very good in their knowledge, but to make it appealing to the students, that is a different skill not given to everyone. And I have to give a special thanks to him for the concern he has shown to our students. In one of the lectures I heard, we know he is a very busy man and a highly knowledgeable, and he is totally engaged. In spite of that, he has that love and affection for the students, and he says, whenever you write a para in English, you send me. I'll correct and get back to you. I'll guide you. This much students, maybe practically it may not be possible to him, but see his concern, the love he has showered on the students. We are immensely thankful to you, sir, for this enlightenment. So, we welcome you once again. We wish to have more sessions for our research scholars. Let us see when it will happen. Maybe in the next academic session, we don't know. Apart from this also, whenever you come this side, you are always welcome to Vivekananda University. We will be very glad to have you amidst us. With this, we'll close this special lecture series. Let me just respond by saying thank you very much. Actually, thanks to Swamiji Maharaj Japasiddhananda ji. He met me in Nagpur during a Shastrik research methodology workshop, which was meant for creating an alternative research methodology for the modern universities. They have only Western research methodology in them. We wanted to create an alternative Shastrik research methodology. In that workshop, he met me and he called me here. And I feel so lucky to have met every one of you. You are so lovable. You are all so cute. You are so pure-hearted, lovable children here. India is losing such children gradually. India is losing children with character, young men with character, young men with discipline, young men with perseverance, young men with traditional knowledge. And the quality of your Shastrik knowledge and quality of your Sanskrit speaking impressed me a lot. This is very rare. Nowadays standards are coming down. Here standards are very high. And I congratulate your teachers for this. Your teachers, some of them are sitting there. I heard the qualifications of your teachers. Every one of them has come from a very rigorous Shastra background, and they have not hidden anything with them. They have imparted all their rigor to you. They have made you as almost as good as themselves. They have given you the strength that you have today, and with this I am hopeful that the West Bengal of tomorrow will have very good Sanskrit scholars, students wherever you go, whether it is intermediate class or degree classes, or some of you can go even to university level. All of them will be very lucky to have highly knowledgeable scholars with very good character who can give them discipline. The next generation can be made highly knowledgeable, and we all have one side of our thinking, that is the Western society, how it is attacking our knowledge
For that also I am so confident that you people have the ability to counter them also. Because you have the foundation, you can counter such distortions of our knowledge systems and distortions towards the respect towards our knowledge systems also. I am lucky to have met, at least for a brief time, the great scholars who are your faculty members, and I am lucky to have met the VC Maharaj also. So all that has happened here for the last 1 week gives me a very great memory. I will carry this memory for a very long time in my life. Thank you. Thank you, sir. Once again, wholehearted thanks from university, from our personal side to you. We'll end this series of special lectures with Apyayantu Shanti Mantra. Apyayantu mamangani va pranaschakshushrotramatho balamindriyani cha sarvani sarvam brahma upanishadam maham brahma nirakuryam ma brahma nirakarot anirakaranam me astu tadatmani nirate ya upanishatsu dharmaste mai santu om shanti 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 hare om tat sat shri Ramakrishna arpanamastu. स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय